So in the principles of copywriting, we have to utilize you attitude rather than we as such. We concentrate to the person or the consumer wherever he is or she is. Ways is right as you speak, as the market is, as the people are, as the culture is. It should be simple. Okay. It should be informative, but in a simple, very simple way. Okay. Concentrate, like your prospect and the questions. You can question sometime. You have to give benefit to your consumer. Okay. Engage his emotions. Take example. Ways is what the correct example of the way. Remember during Valentine Day, what happened? This Cadbury, they came up with that pop-up chocolate, pop-up heart. So that was the best time, right, to concentrate the emotions. Along with that, they are providing the benefit in that. So the mind of consumer has that particular image. Let purchase the same thing, whatever the rate it is to be, and provide and give it to my loved ones. Okay. Where there is the attachment kind of. So that is the important related with the ways, as the situation, as the market is, as the people to be there, utilize your ideas, emotions, etc. That is the second point altogether, giving as ways, right, as you speak, situation, festival, situation, ideas, whatever. Third one is use attention getting headlines. You can, like, you are the person who can utilize this one, like urgent, wanted, okay, sale, discount, offer. There are many words as to be. So attention getting headline, when you are utilizing, people will definitely able to see again. Have you heard? होता है ना question mark type of thing to be there. So you have to utilize that attention getting headlines. क्या आपने ऐसा कभी देखा है? Okay. Have you heard before type of products and services? Okay. Or the very new, very innovative, very creative product type of something like where people can focus twice, like what exactly is happening. That is the attention getting headlines. So this is another principle, and for that you have to do research regularly. For that you have to make yourself to be, like capable and available in the market with different types of the research work activities, and imply your knowledge in a systematic way, so that utilize those systems and utilize those webinar knowledge, seminar knowledge, etc. for your work. That is what copywriting. Expand heading with lead paragraph. This is basically for the newspaper writers to be the headlines and magazine writers. When you are making headline, then there is a sub headline below that. Headline, when you read in newspaper, many times it happens, people will not able to understand anything only because of the headline. Sub headline gives some glimpses, glimpses, and then the introductory para give outline, and main para provides everything. Conclusion is all about conclusion. I'm talking about newspaper ka article. Okay, conclusion, where you can conclude from your particular end as a writer, is it correct or not, or if it is wrong, so why it is wrong, etc. You are the person, when you are representing, like utilizing copywriting techniques, make sure whatever headline you are giving, like whatever slogan you are giving, it should be go ahead with the paragraph in the writing. But in advertising, what happened, whatever slogan you are providing, that slogan should be fit with your advertisement in TV commercials. टेक एनी एग्जाम्पल, व्हेन दे से दाग अच्छे हैं, ओनली फॉर द दाग अच्छे हैं बोल के नहीं चलेगा. यू हैव टू शो द सिचुएशन. ओके, जहाँ पे बच्चे के 10 रुपए गिर गए हैं और वो निकाल नहीं पा रहा है, फिर दूसरा बच्चा आके हेल्प कर रहा है. सो हेल्पिंग इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमोशन. ओके, it is a particular type of emotion, Indian culture way, that we help people irrespective of the situation or the idea. So he helped. फिर उसमें उसके कपड़े खराब हो जाए तो चलेगा, क्योंकि दाग अच्छे हैं और वो 10 रुपए में काम हो जाएगा, छोटा पैकेट ले लेंगे. सो व्हेन दे से चौक गए ऑफ द टाइड. ओके, सो आप तो होली खेल के आ रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट टाइड की बात मैं कर रहा हूँ, आयुष्मान का. सो आप होली वगैरह खेल के आ रहे हैं, तो बोल रहे नहीं कोई ये तो दाग जाएगा नहीं, फिर चौंक गए. मतलब दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हैज टू बी देयर व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग हेडलाइन विद द लीड पैराग्राफ. ओके, तो मैंने दोनों टाइप से एग्जांपल दिया, रिटन आल्सो एंड ऑडियो वीडियो आल्सो.
focus on the reader, not the of course this is very simple principle. You have to focus to the consumer. Okay, don't focus more to the product. Of course you have to provide information about product, but your more focus is what? Consumer. You have to focus because everybody has need, everybody has references, everybody has dislikes, everybody has want, desire, fear, weakness, concern, okay, fantasies, etc. So everybody wants something, some uniqueness access to be. So you should focus more on the consumer and change the attitude of that particular person towards your product and service, and that is the important thing. Okay, when you say that in sanitizer or Lifebuoy as a sanitizer, we are the first who has admitted and provided this information that sanitizer is important, that means you are creating a positive buzz in the mindset of a consumer कि हम ही best हैं. Have you saw that advertisement जहाँ पे लाइफ बॉय का ही एडवर्टीजमेंट था, एंड दे वर लाइक कि आप कहीं से भी बाहर आ रहे हैं कोरोना टाइम पीरियड में तो आप अपने हाथों को साफ करिए, साबुन से साफ करिए वगैरह वगैरह. एंड एट द एंड दे वर सेइंग दैट वन, एंड दैट वाज द वेरी नाइस थिंग कि आप कोई भी साबुन यूज करो चलेगा. सी इफ आई एम एडवर्टाइजिंग, मैं कोई भी साबुन यूज करूँ ऐसा बोलूँगा, but this is a situation, the pandemic situation, where you are focusing more towards the consumer कि भाई you should be aware about. Okay, so you are focusing towards the reader, the consumer who is sitting on the another side. Getting everyone? There are many examples where people focus more on the reader or the consumer. Okay, आपने देखा होगा लैक्मे वगैरह एंड ऑल के ये आए हुए हैं, काजल एंड ऑल स्टफ टू बी देयर. और यू नो इन इंडिया व्हाट हैपन, हमारे यहाँ पे काजल घर पे ये लोग बना लेते थे. लाइक इन माई एरिया आई नो एक दिया होता है, दूसरे उसके ऊपर दूसरा दूसरा दिया, हाँ करेक्ट है, दूसरा दिया रखेंगे, फिर उसमें पेंसिलिन वगैरह रख के मम्मी दादी, मैंने देखा हुआ है, इनफैक्ट आई हैव अप्लाइड, यूज भी किया हुआ है, वो काफ़ी अच्छा भी होता है. लेकिन लैक्मे उसको ब्रांडेड करके देगा भाई. एक तो पहला ब्रांड. हाँ हाँ जो, हाँ बताओ. इधर तो रात को लगाओ, नीचे सुबह सुबह फैल गया पूरा. वो 12 घंटे एकदम वैसे ही रहेगा. पता नहीं उसमें कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं, आंखों के लिए सही है कि नहीं है, नोबडी नोज. हम थोड़ी रिसर्च करके यूज कर रहे हैं. लैब में परचेस करने के बाद हम साइंटिस्ट के पास जाते हैं क्या, देखो भाई ये आंखों के लिए सही है कि नहीं है. कोई गया है क्या कभी? जाना भी नहीं. बट यस, हमारा जो प्रैक्टिकल है उसको ब्रांड की वजह से ऑफकोर्स उन्होंने फोकस किया है कि हमारा जो रीडर है, हमारा जो कंज्यूमर है, वो कई बार हाथ मुंह धो गया, वो एग्जीक्यूटिव है, ऑफिस में काम कर रहा है, एक बार वो अप्लाई कर ले तो भूल जाए कि भाई काजल वापस लगाना है. सो दे आर फोकसिंग टुवर्ड्स द रीडर और द कंज्यूमर. ओके, ब्रांड वाले प्रोडक्ट्स ऐसे ही हैं. नेक्स्ट वन इज यू हैव टू बी सिंसियर. Of course you have to be sincere on the basis of your product, the ingredient to be there in that particular product, the usage, how to utilize that product. On that basis you have to sincere if you are representing your advertisement. Sincere, don't represent and depict any particular type of controversies on with the help with and by using your advertisement. Don't be in a controversy, be sincere. आपका जो प्रोडक्ट है जैसा है, whatever ingredient it is to be, वो सही सही बताओ. ओके, सिंसियरिटी पे ठीक है. पतंजलि के प्रोडक्ट्स चले हैं काफ़ी कि हमारे देश के प्रोडक्ट हैं, देश में आ रहे हैं. बहुत सारे केसेस पतंजलि पे हुए जो बोल रहे हैं कि फॉरेन से वो लोग चीज़ें मंगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, कहीं और से मंगा रहे हैं. हालांकि उनकी सिंसियरिटी ये थी कि हम अपने देश से ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, ओके, ले रहे हैं, वट एवर. मैं वो कॉन्ट्रोवर्सीज पे नहीं बात कर रहा हूँ. सिंसियरिटी इज ऑल अबाउट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग एवरीथिंग इन अ करेक्ट वे. If I am saying that this particular ingredient is there, it has to be. If I am saying it is a 250 ग्राम, तो कोई भी उसको चेक कर ले यार, 250 ग्राम ही होगा. It is as not, it should not be as like 250 ग्राम I am writing, okay, on the weight side, or in reality it is 240 ग्राम और 300 ग्राम. वो तो उतना करेंगे नहीं बिजनेसमैन है. 240 भी नहीं हो सकता है. कंज्यूमर फोरम में पहुंच जाएगा कंज्यूमर. आप लोग अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे लीगल एथिक्स, और होपफुली लास्ट टाइम में किसने, शायद मैंने ही पढ़ाया था आपके कॉलेज में. So you have to be sincere whenever you are addressing and saying any particular advertisement concern. Another important rule.
make your product irresistible. Means if I see that particular product na, मतलब I should feel like yeah, I will have it definitely on the basis of the price, quality, especially on the basis of quality, especially on the basis of presentation, etc. कैडबरी सिल्क से अच्छा एग्जांपल मुझको नहीं लगता है. मतलब कितने एडवर्टीजमेंट आई हैव सीन, पहले सिल्क लो, मुंह पे लगाओ, हाथ में लगाओ, फिर खाओ. फिर पिताजी आए, बोले ये क्या चल रहा है यार. फिर एक लड़की एक लड़का स्टेयर केस पे बैठे हैं, खा रहे हैं. कोई खाता है ऐसा? कभी कॉलेज में खाओगे आप लोग? क्लास में खा रहे हैं आप, सिल्क खो गए हैं. इररेसिस्टिबल योर प्रोडक्ट. लेट एवरीबडी फील लाइक ये प्रोडक्ट नहीं लिया मतलब सबसे घटिया हो गया. एक और एग्जांपल देता हूँ. इन द रिसेंट टाइम आई हैव सीन दैट महेश ट्यूटोरियल. अगर बच्चा 10वीं में महेश ट्यूटोरियल में गया तो आप भूल जाओ, फिर तो पास क्या हो, 90 प्लस ग्रेड आएंगे यार. इररेसिस्टिबल इररेस्पेक्टिव ऑफ द रेट्स. हाँ, यही सेट है ना. मतलब आपको पूरा वो दिमाग में बैठा देंगे. वहाँ माँ सरस्वती स्वयं बैठी हैं. आप सिर्फ जाओ, माँ सरस्वती को पैर पड़ो, उन्होंने सर पे हाथ रखा, पूरा ज्ञान भर गया दिमाग में. ऐसा होता है क्या? हाँ. यही पोर्ट्रेट है ना, व्हाट आई एम सेइंग. तो इट इज मेकिंग, अभी पेरेंट्स बेचारा क्या कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा है, दैट इज नॉट द मैटर. वो कुछ भी करके भाई हुक एंड क्रोक वो बताएगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी यहाँ पे जाए भाई, बेस्ट पढ़े. इररेसिस्टिबल. मतलब बाकी जो आपके एरिया में जो कोई पढ़ा रहा होगा ना, मतलब वो तो बकवास है. okay? सिल्क का वैसे ही है, पॉपअप का भी इनफैक्ट वही है. नो, देयर आर प्रोडक्ट्स व्हेन दे आर रिप्रेजेंटिंग दैट देश का नमक. नो, टाटा नमक इज देश का नमक. अरे भाई, तो हम जो नमक ले रहे हैं, हमें क्या पाकिस्तान से लेके आ रहा हूँ क्या नमक? अगर मैंने समझो टाटा नहीं ले रहा हूँ, मैं दूसरा नमक ले रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँ, ये मेरे देश का नमक नहीं है. सच काइंड ऑफ आइडियाज ना क्रिएट इररेसिस्टिबल. इफ यू आर अ देशभक्त और आप देश का नमक नहीं ले रहे हैं, ओ माय गॉड, वेयर आर यू? सो सच काइंड ऑफ थिंग्स दे क्रिएट इन द माइंड. बेचने का ट्रिक है ऑफ कोर्स. हाँ, कजारिया का. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है. सो दे गिव अ फीलिंग कि ये बेस्ट है. आपने बचपने में बहुत देखा होगा, लाइक इन माय अंबुजा सीमेंट है. बचपने में देखा हो फेविकॉल का ऐड देखा, फेविकॉल का. ऐसा अ, कभी ना टूटे. तो फेविकॉल का मतलब ही फिक्स हो गया कि मजबूत जोड़, बात ही खत्म हो गई भाई. अभी कोई और. हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अभी वो इररेसिस्टिबल ही हो गया ना, और हमने देखा हुआ है हाथ होथ में लग जाए तो एक्चुअली डिफिकल्टी होती है. ओके. सो दे मेक सिचुएशन थिंग्स आइडिया इररेसिस्टिबल. ओके, यू हैव टू मेक इन नियर फ्यूचर. आप कॉपीराइटर हो भाई, फ्यूचर में आपको यूज करना है सब चीजें. जब मैं अगर बोलूं कि आई एम द बेस्ट प्रोफेसर ऑफ बीएमएम, ओके, एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रोफेसर ऑफ बीएमएम, so don't worry at all for all the subject. Actually I am, okay, ये तो मैं एग्जांपल कर रहा था. So in near future you will get to know, for all the subject you have to anyhow connect, वो सारे रास्ते मेरे तक ही आएंगे. So through that way also, when I'm pitching, when I'm saying in year, when I say from years, पिछले 10-15 साल से जो मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ, ओके, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ 15 साल से, तो आई नो कि हाउ irresistible work, okay, in a practical base. You can utilize this one as a copywriter for your products and services. यूज फियर एज मोटिवेशन. हमसे अच्छा कौन समझेगा यार, इंडियन से अच्छा. हम तो हर चीज में डरते हैं, भगवान से पहले मना लेते हैं. ओवर हियर फियर एज मोटिवेशन. बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑल द इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस. ओके, आपकी बच्ची बच्चा आगे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इंश्योरेंस. मेडिकल मेडिक्लेम इंश्योरेंस. पूरी जिंदगी इंश्योरेंस बना दिया है लोगों ने. सो इट इज ऑल अबाउट द. हाँ हाँ. फियर उसमें कौन सा है फियर? तो उसमें कोई फियर.
हाँ पॉलिसी है तो फियर है, पॉलिसी पॉलिसी विल बी देयर, हाँ अकाउंट ओपनिंग वाला फियर नहीं है, पॉलिसी में ऑफ कोर्स वो बताते हैं। ओके ओ फायर फायर का फियर। ओके हाँ मैं करता हूँ। ओके तो यूज फियर एज मोटिवेशन व्हेन यू रिप्रेजेंट दैट, कि भाई आपके चेहरे पे पहला पिंपल, ओ माय गॉड, फिर तो आप गए। हाँ फिर तो आप गए, हिमालय फेस वॉश नहीं यूज कर रहे मतलब आप तो इस दुनिया, अरे मेरे भाई ऐसा कभी होगा क्या कि पिंपल नहीं आएंगे किसी को? आपको एकदम स्किन एकदम माइकल जैक्सन चाहिए ऐसा तो नहीं होगा, बट दे क्रिएट दैट सिचुएशन। ये ये फियर है कि आप अपने वो पिंपल्स वगैरह एंड ऑल को क्लीन एंड क्लियर रखो। मैंने एक और देखा एडवर्टीजमेंट, वो दीपिका जी कहीं से आ रही हैं और सब लोग बोल रहे हैं अरे वाह इतना अच्छा ग्लो है, वाह बहुत अच्छा यार आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बोलती है मैं ये साबुन से नहा के आ रही हूँ, some soap is there supposed to be Lux or something, you saw that advertisement? हाँ अभी मुझको ये बोल, हाँ तो अभी ये इसमें फियर वाली चीजें देख क्या है। हाँ आप करेक्ट है, आप ये सोचो उनको एक्चुअल में जब पीपल दोज हु आर फिटनेस फ्रीक वगैरह या थोड़े से जानते हैं कि आपका चेहरा क्यों अच्छा लगेगा, भाई आप मॉर्निंग में जल्दी उठो, थोड़ा योगा करो, प्रॉपर डाइट रखो, थोड़ा दौड़ो ओड़ो, थोड़ा पसीना वसीना बाहर आए, तो आपके चेहरे ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा। नहीं कुछ मत करो, लेजी बन जाओ, लक से ना लो, होगा क्या? कभी नहीं होगा भाई। हाँ नहीं दैट ओके ठीक है, बट वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन फियर एज मोटिवेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड फियर एज मोटिवेशन में। आप सीएट टायर्स का ले लो, हमारी दुनिया में हमारे भारत देश में कैसे कैसे तुर्रम लोग हैं, सो दे हैव शोन। यस यस माउंटेन ड्यू इज प्रॉपर एग्जांपल, उसका तो स्लोगन ही फियर पे है। हाँ, डर डर तो सबको लगता है, डर का मतलब ही फियर। गला सबको सूखता है। हाँ 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 तो थम्स अप वाला एक्साइटमेंट है एक्चुअली मोर ऑफ, लेकिन माउंटेन ड्यू का तो फियर। ओके बट इसका जो है इस पर्टिकुलर पार्ट रिलेटेड विद दिस वन माउंटेन ड्यू, वो है बेसिकली यू से यू कैन अंडरस्टैंड दैट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओवर हियर माउंटेन ड्यू की अगर मैं बात करूँ तो वो फियर है, दैट इज मोर ऑफ फियर। बस ना यही था एक बंदा मेरे ख्याल से। आपको दिख रहा है क्या ये? हेलो? हाँ हेलो? मैं तो गायब हो ही गया हूँ। ये नोट्स दिख रहे हैं क्या आपको स्क्रीन पे? वेरी नाइस, आप लोग बहुत जेन्युइन हो। जेन्युइन जेन्युइन। कुछ लोग मतलब हमेशा लेट ही आते हैं, मतलब उन्होंने प्लान किया हुआ है कि हम थोड़े टाइम बाद ही आएंगे, अभी दिखेगा। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा। एक्चुअली मेरा ये तीसरा ही लेक्चर है ना, तो हाउ आई कैन नो, तीसरे में 2 दिन आप लेट आ रहे हैं। सो आई 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 अप्रिशिएट गुड। ओके फियर फियर एज, डोंट टेक इट हार्श, ऐसे ही था ये। फियर एज मोटिवेशन इज ऑल अबाउट, समझ में आ रहा होगा, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स की बात किया है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कोर्स, बी पर्सनेबल, लाइक यू हैव टू यूटिलाइज सच वर्ड्स एंड पावरफुल वर्ड्स। जो ऊपर जो बात किया था उसके देखो ये आपको दिख रहा होगा, इजी कन्वीनियंट वगैरह आ रहा है। मैं पहले पर्सनेबल समझा था, योर प्रोडक्ट शुड फील लाइक इन लाइक इट शुड बी वेरी पर्सनल, the person who is watching from the another end he should feel like it is only for me, मेरे लिए ही बात हो रहा है। Are you getting? If they are giving example of shampoos, okay, whenever they talk about
कि डैंड्रफ है, 2 मुंह में बाल। ये तो एड वालों ने हमको समझाना है कितने मुंह में बाल होते हैं, कि आपके बाल सिल्की हैं, आपके बाल ड्राई हैं, आपका चेहरा ऐसा है वगैरह। स्पेशली फॉर द शैम्पूज की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये तो उन्होंने बताया। तो इट शुड बी पर्सनेबल कि भाई आपको डैंड्रफ वगैरह है to utilize this particular shampoo. Take example of Sunsilk or another example of Pantene, etc. Okay. Pantene wala, I remember you have to give human touch more of when we are talking about the personable. It should be there should be more of human touch. You saw advertisement of Jumbo King advertisement टीवी पे भी आया था, बट हैव यू सॉ दैट पोस्टर एड? जब भी आप जंबो के जब प्रोडक्ट आप परचेस करने गए तो एक पंजाबी बंदा है, एक कर्ली बाल वाला लड़का है, एक लड़की है, वो लोग वड़ा पाव खा रहे हैं। मतलब मुंबई की पसंद, इट इज पर्सनेबल रादर देन ओनली वड़ा पाव। बेटर यू गो एड विद जंबो। मेट्रो वगैरह में ट्रेवल किया होगा तो देखा होगा यार, मेट्रो पे तो सब जगह लगे थे उसके। देता हूँ बहुत सारे एग्जांपल है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जंबो वाला। ओके, पर्सनेबल का मतलब देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपना हॉर्लिक्स वाला। वो माँ बोलती है ना, मैं कभी हारूंगी नहीं, मैं जानबूझ के नहीं हारूंगी। ओके, हाँ 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 हाँ, बॉर्नविटा तो वेयर उसमें से भेज दो ना। हेलो हेलो, या जस्ट अ सेकंड, हाँ क्या भेजना है अभी? किसमें है? ये ऊपर ही होगा इन योर क्लास। शी इज नॉट अटेंडिंग क्लास or what? Tell her to attend regularly. You posted na that particular link to your mother's phone. Why you are searching again? What yes? हाँ, ये बी वाला भेजो ना मम्मी। ठीक है। हाँ, Hello, hello everyone. Yeah, you are able to see this one now. Hey, that's great. मतलब आप सब देख रहे थे। Fabulous, yeah. This is the best part related with what is going on, yeah. पर्सनेबल का, हाँ, जो भी बॉर्नविटा है, जो कि मतलब मैं अपने बच्चे से जानबूझ के नहीं हारूंगा, इट इज पर्सनल। एवरी मदर विल फील लाइक, बोलो हमारी मम्मी क्या साड़ी पहन के दौड़ने जाएगी? बट यस, दे आर क्रिएटिंग दैट पॉजिटिव बज या इम्पल्सेस बोलते हैं इसको आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कि मैं अपने बच्चे को बेस्ट दूं। समझ में आ रहा है? ये पर्सनल हो जाता है कि मतलब मैं फील करूँ कि हाँ मेरे परिवार में बेस्ट मिल रहा है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, मेनी एग्जांपल्स आर देयर रिलेटेड विद द पर्सनल काइंड ऑफ। सफोला का भी यही है कि मेरा परिवार अच्छा रहेगा, वो हार्ट अच्छा रहेगा। इन स्पाइट ऑफ दैट सिटीज में हम देख रहे हैं कितने हार्ट अटैक आ रहे हैं। ओके, इट इज ऑल अबाउट पर्सनल थिंग। डियोज एंड ऑल का थिंग, जो एग्जांपल है डियो का, चाहे एक्स का हो, ये पर्सनल है। इट इज, आपने देखा वो छोटा डियो पॉकेट, क्या पॉकेट डियो क्या है वो, जेब में रख, पॉकेट परफ्यूम, पॉकेट टिकट। आप थिएटर में जा रहे हो, पॉकेट टिकट निकालो पहले भाई, टिकट बाद में निकालना। You saw that it is personal, everybody should carry that one. They are saying in the principles of copywriting as these are the examples of the persuasive some important powerful words like जो स्टार्ट में भी पॉइंट आया था, वांटेड मैंने बताया था, वार्निंग, डिपेंडेबल, एक्सक्लूसिव, कन्वीनियंट, बिगेस्ट ऑफर, बिगेस्ट सेल, पता है ना, साल का सबसे बड़ा सेल, डीमार्ट 15, 16, 17, इंडिपेंडेंट सेल, क्या पता कौन सा सेल निकालते हैं यार। Whatever. These are the pointers to be there. Next principle is check your spelling. Why you have to check your spelling? You're a copywriter. Come on. There are team, those who are working for you, under you. So ultimately, they want to say that there should not be any particular spelling wrong when you are representing
on the basis of newspaper, magazine or in television you are presenting, social media पे आप advertising कर रहे हो, wrong नहीं होना चाहिए भाई spelling कोई भी. So you have to you have to scrutinize the thing, you know, again and again 2-3 times. किसी proofreading सुना होगा आपने, proofreading. So in content writing also there is a proofreading. जिसने किया होगा कभी, तो आपने कभी कॉलेज के लिए भी किया होगा, आपका प्रोस्पेक्टस या कोई भी चीज़ का तो प्रूफ रीडिंग होती है. 2-3 people go through with that and they find out if there any particular problem, grammatical problem is there, you have to rectify as on time. क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, पहले तो ब्रांड की धज्जियाँ उड़ेंगी, नंबर 1, ओके. और उसके बाद वो कॉपीराइटर और वो एड एजेंसी कौन सा था जिसने ये स्पेलिंग मिस्टेक किया है. सो दैट विल बी अ वेरी बैड इमेज may create in near future. Use photos to demonstrate. बहुत बहुत प्यारा है ये. Use photos to demonstrate. Like if I want to purchase a particular farmhouse, तो farmhouse कैसा होगा? हाँ. Yes, yes. हाँ, तो उन्होंने स्पेलिंग चेंज किया. एक्चुअली इस पे आएगा, आ सकता है एज ए एग्जाम्पल, क्योंकि वो उन्होंने चेंज किया हुआ है. अदरवाइज इसमें क्या आता है, लोग फॉल्ट वाले काम कर देते हैं, गलत स्पेलिंग लिख देते हैं, तो वो इमेज को खराब करता है. हाँ, उसका कोई तो मूवी का था, आई डोंट रिमेम्बर दैट. हाँ, तो अगर सोचो, हाँ हाँ, अगर सोचो एक भी आपने स्पेलिंग गड़बड़ कर दी, कितना बड़ा उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. इमेज कितना खराब हो जाता है लोगों के मन में. न्यूज़पेपर में तो बहुत होते रहता है. एंड यू माइट बी नोइंग, क्योंकि तुम लोग जर्नलिज्म के नहीं हो इसलिए मैं नहीं बात कर रहा था, चलो बता देता हूँ. तुम अगर न्यूज़पेपर रेगुलरली चेक करोगे तो उसमें देखो मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं, बिकॉज उसमें वर्ड्स ही होते हैं. सो उन लोग मंथ में क्या करते हैं, एक माफ़ीनामा भेजते हैं. इफ देर इज एनी पर्टिकुलर थिंग, मुझको खराब लगा है ना, मैं रेगुलर रीडर, मैंने लिख दिया कि हिंदी में या इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स में ये गड़बड़ आया था या स्पेलिंग गलत था, तो वो लोग भेजते हैं कि इफ देर इज एनी पर्टिकुलर फॉल्ट एंड ऑल, किसी को खराब लगा हो तो उसके लिए हम लोग माफ़ी मांगते हैं. It is a genuine respective work from the end of the owner. So better, as a responsible person, you people are like, you are like in near future copywriter, you have to be very much careful about this. Next one is use photo to demonstrate. मैं वही example बता रहा था. There can be many things, like if I want to purchase farm house, तो farm house में कैसे वो रो हाउस बना के रखा हुआ है, सामने खेती है, हाँ, कुछ फ्लावर plants to be there, butterflies are roaming here there, उड़ रही हैं सब, तो वो attract करेगा. Let purchase farm house. And when you actually visit over there for the farm house, आपको पता चलेगा एक open land है, आप बनाओ इसको. होता है कि नहीं? So for many products and services, they generally use photos to demonstrate their products and services. तो चाहे आपके स्मूथ स्किन के लिए वो फेयरनेस वाले तो भयंकर ही हैं. इसमें देखो एग्जांपल भी है, फेयरनेस एक्सेट्रा, बड़े भयंकर हैं फेयरनेस वाले. आपने वो जिम वाले लोगों को जो पाउडर वगैरह, प्रोटीन वगैरह जो डब्बे बेचते हैं, जहाँ पे भी शोरूम रहेगा, आपने बाई चांस देखा होगा, वो डब्बा रखा हुआ है प्रोटीन का, और जो बंदा खड़ा है, मतलब आप भूल जाओ ना भाई बॉडी क्या है उसकी. मतलब हम सोचे कि भाई बस हो गया, 2 महीने मतलब मैंने वो डब्बा खत्म किया तो बस ऐसी ही बॉडी होगी, ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ, कितने लोग इस चक्कर में चले जाते हैं, किडनी खराब, क्योंकि आप एक्चुअल में वो प्रोटीन तो खा रहे हो लेकिन उसके लिए उतना मेहनत नहीं कर रहे हो. ओके, तो वो डोंट गो ओनली फॉर द डेमोन्स्ट्रेटेड वे, बट यस, आपको ये यूज करना है नियर फ्यूचर. व्हेन यू आर सेइंग दैट लोटस, दिस व्हाट, रोज प्लेट्स पैलेट्स टू बी देयर, रोज के खुशबू आएगी आपके सोप से, तो वो रोज वाली फीलिंग के लिए वैसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करोगे भाई एडवर्टीजमेंट में. सो यू कैन यूटिलाइज फोटोज एंड ऑल टू डेमोन्स्ट्रेट. अगर आपको जंगल वगैरह दिखाना है तो जंगल जैसा सिचुएशन होगा, भले वो आप एनिमेटेड या कुछ भी करो. Use graphics to get attention. Many people, animation and graphic is one of the latest thing that people are utilizing for making more and more attentive to the people over there in any particular market. बहुत बहुत यूज हो रहा है ये graphics and all. KitKat का ऐड देखा होगा ना, वो लोग खाते हैं और स्क्वेरल बन के निकल रहे हैं और क्या है वो ग्राफिक. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. पार्क एवेन्यू BI शैम्पू का एडवर्टीजमेंट है, बहुत सारे एड्स हैं ऐसे.
जहाँ पे ग्राफिक, और ग्राफिक तो अल्टीमेटली अट्रैक्ट करेगी ही करेगी यार, कम ऑन। आजकल तो कार्स वगैरह में ग्राफिक वगैरह यूज कर रहे हैं, वो हर एक प्रोडक्ट में ही ग्राफिक और ये एनिमेशन यूटिलाइज हो रहा है। नेक्स्ट वन इज ऑफर टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल मैंने बताया था, लाइक इफ सम सेलिब्रिटी और some opinion leader, when they share their experience with some products and services, automatically people feel it to be very attached. ओके, अभी अमिताभ बच्चन बेच रहे घड़ी डिटर्जेंट, तो भाई बड़ी बात है, फिर तो रूरल एरिया में लोगों को यही लगेगा घड़ी ही सबसे बेस्ट है। इनफैक्ट इन द अर्बन बहुत सारे लोग दोज हु प्रेफर अमिताभ बच्चन एज अ ब्रांड एम्बेसडर, एंड ही इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेनी थिंग्स। ओके, ब्रांड इक्विटी में एक आया था, आई रिमेंबर दैट अक्षय कुमार इज seen on the television 9 hour 70 minutes in a day। 9 घंटे हमको देखने हैं अक्षय कुमार को, अमिताभ बच्चन को 5.5 घंटे देखने हैं। तो सी द वेटेज ऑफ दैट सच काइंड ऑफ टेस्टिमोनियल्स। अगर ऐसे कुछ कोई मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ने कुछ बोल दिया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो बस बात ही खत्म हो गई। मेनी एग्जाम्पल रिलेटेड विद द ब्रांड एम्बेसडर एंड ओपिनियन लीडर्स, ये सिंपल है टेस्टिमोनियल। क्रिएट मेमोरेबल लोगो, इसमें कुछ एग्जांपल भी हैं, लाइक मैगडी का है। ओके, एम एम देख के हमको वही ध्यान में आता है ना, और रेड एम जो लिखा हुआ है, क्या आई एम लविंग इट, बराबर है ना? ऐसा एम देख के कुछ और याद आता है क्या? मम्मी, वही याद आएगा। मैकडॉनल्ड, सही है। एम से, वाओ वेरी नाइस, अप्रिशिएट। सो यू हैव टू क्रिएट मेमोरेबल लोगो। अब यो टिक मार्क वाला जो है, टिक मार्क देखते जस्ट डू इट, नाम लेने की जरूरत ही नहीं, आपको समझ में आ जाता है, इट इज नाइकी ऑलरेडी। सो along with logo, slogan is also very important। उसके नीचे देखो स्लोगन भी दिया हुआ है। थम्स अप का, वो सिर्फ थम्स अप का सिंबल देख के थम्स अप याद आ जाता है। ओके, और टेस्ट द थंडर, वाओ टेस्ट द थंडर वैनिला, या हाँ, क्या, लेकिन उस एग्जैक्टली 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 सरोगेट एडवर्टीजमेंट है वो। हाँ हाँ, लेकिन उसका क्या ऐड है वो तो बताओ, उसका क्या याद है स्लोगन का? हम्म, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जाके ग्लास का परचेस करके लेके आएंगे, सोडा। हाँ, बैक पाइपर वाला। हाँ, तो सही है, सही है, सही है। मैं एक चीज देख रहा हूँ, यंग लोगों को ज्यादा से ज्यादा लीकर की एडवर्टीजमेंट ध्यान में आ रहे हैं। बारिश हो रही, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन दूसरे के याद नहीं आ रहे हैं यार। अभी आपकी बात सुन सुन के मुझको अभी एक और याद आ गया, आपके एडवर्टीजमेंट सुन सुन के मुझको। क्या स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज, क्या है सब। वेरी गुड। हाँ, मैन विल बी मैन। और हमारे यहाँ पे एक डायलॉग, हाँ, करेक्ट, करेक्ट है। सो सो logo and slogan is very important. Is, yeah, listen. So I feel everybody is able to understand logo and slogan both is important, and you have to create something like unique as such। Like मैं वही example बता रहा था, taste the thunder, ये दिल मांगे more for the Pepsi। Okay, just do it type of एशियन पेंट मेरा वाला, तो बहुत सारे फेमस हैं। चेंज द गेम, ओ यस, अभी स्वैग अभी जो बहुत अच्छा चल रहा है, हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, कैन बी यूटिलाइज एज स्वैग। नेक्स्ट वन इज गेट अ रिस्पॉन्स। This is last important principle that is given to you। See, get a response is what, हम सब कुछ कर दिए, at the end people are not purchasing my products and service, then it is a waste of money, waste of time। So here you have to get response, if you have did good advertisement, if you have pitched according to the time and season। Okay, if there is a proper discount offer you have offered to the person or the individual customer to be there in any particular market, then you will get response from the consumer,
and they will purchase your products and services as it is, as the people they are able to understand your products and services. That's it. These are the important principles of copywriting.